ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر صاحب؟ الحمد للہ الحمد للہ۔ تو فرمائیے۔ آج ایک کتاب کا حوالہ دوں گا، اور ایک کتابوں کا حوالہ دھیرے دھیرے، تاکہ ایک ہی دن لوگوں پہ بھاری زیادہ نہ دیا جائے، بھار نہ دیا جائے، ہے نا۔ جی جی تو آج براہین قاطعہ جو ان کے معتبر کتاب ہے دیوبندیوں کا، جی جی براہین قاطعہ میں صفحہ نمبر 55 میں خلیل احمد امبیٹوی نے بحکم رشید احمد گنگوہی یہ کتاب لکھی ہے۔ حضرت علامہ عبدالسمیع علیہ الرحمت الرضوان کے رد میں لکھے ہیں، جو ہمارے علماء تھے، جی اور وہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 55 میں براہین قاطعہ میں، الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دے کر علم محیط فخر عالم کو نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے کہ شیطان اور ملک الموت کو یہ علم وسعت علم نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے جسے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے۔ براہین قاطعہ صفحہ نمبر 55۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ لکھنے والا خلیل احمد امبیٹی۔ ہاں، اس کو سمجھیے آپ۔ زمین کا علم محیط گنگوہی نے شیطان اور ملک الموت کے لیے نص یعنی قرآن و حدیث سے ثابت مانا ہے۔ جی نص کہتے ہیں قرآن کی آیتوں کو، ہے نا۔ اچھا پھر اسی علم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شرک بتایا ہے، اور یہ شرک اسی وقت ہوگا جبکہ اسے اللہ تعالی کی صفت خاصہ مانے۔ کس کو؟ یعنی محیط علم کو اگر اللہ تبارک و تعالی کے لیے خاصہ مانیں گے تبھی شرک ہوگا، جی اور جب اسے اللہ عز و جل کی صفت خاصہ مانیں گے تو شیطان اور ملک الموت کے لیے اسے ثابت ماننے کا مطلب یہ ہوگا کہ شیطان اور ملک الموت خدا کا شریک ہیں۔ ظاہر سی بات ہے۔ ہاں، اور گنگوہی ان دونوں کے لیے ثابت مانا ہے، یعنی شیطان اور ملک الموت کے لیے ثابت مانا ہے یہ وہ محیط علم کو، شیطان اور ملک الموت کے لیے مانا ہے وہ انہوں نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی سا نص نہیں ہے، کوئی سا حدیث میں نہیں ہے، کوئی قرآن کی آیت میں نہیں ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانو گے تو شرک بتایا ہے۔ ٹھیک۔ اب لازم آیا کہ انہوں نے شیطان اور ملک الموت کو خدا کا شریک مانا ہے۔ یہ عبارت کا ایک صریح کفر ہے، یہ سمجھے۔ پھر اس کفر و شرک کو نص یعنی قرآن و احادیث سے ثابت مانا، یہ دوسرا کفر ہوا اس کا۔ آخر میں ہے شیطان اور ملک الموت کو یہ وسعت یعنی علم کی وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے جسے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے، یعنی شیطان اور ملک الموت کے علم کی وسعت جو ہے اور زیادتی ہے نص یعنی قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس لیے شیطان و ملک الموت کا علم وسیع اور زیادہ ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسعت علم یعنی علم کی زیادتی ہونا چونکہ نص قطعی سے ثابت نہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسعت علم ماننا شرک ہے۔ اس کا صریح مطلب یہ ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا علم زیادہ نہیں ہے، وہ زیادہ نہیں مانتے، جس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ گنگوہی کے نزدیک، امبیٹی کے نزدیک شیطان کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے۔ کھلم کھلا یہی ثابت ہو رہا ہے۔ میں اس پہ یہ قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض
तनशक्कुल अर्दु व तखिरुल जिबालु होदा। इसका माने ये होता है, करीब है कि आसमान टूट पड़े, जमीन फट जाए और पहाड़ ढह जाएं। जिसके दिल में जर्रा बराबर ईमान होगा, क्या उससे ये इसके तहरीरात को इसमें शक होगा कि ये कलमा कुफ्र नहीं? कोई शक कर सकता है मुसलमान ये कलमा कुफ्र नहीं है? क्या इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुली हुई तौहीन नहीं है? बिल्कुल है। क्या इस कुफ्र शरीफ के बाद भी गंगोही और उसके चेले मुरीद और खलीफा अम्बेठवी के कुफ्र होने में, काफिर होने में कोई शक व शुबहा बाकी रह जाता है? नहीं जी, नहीं हजरत, बिल्कुल नहीं। ऐसे शनी कौल, बुरी बात पर मुजद्दिद आजम सैयदी सरकार आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत रिजवान ने गंगोही और अम्बेठवी साहिबान को काफिर करार दिया है। ये जुर्म है, समझे जी। दिल में चुभने वाली बात सुनिए। मुसलमान जब सुनता है तो बहुत ऐसी तौहीन आमेज अल्फाज जो लिखा है, वो उन्होंने गुस्ताखी की है, तो दिल में चुभते हैं सुन करके। नंबर 1, शैतान की उसाते इल्म का सबूत के लिए सिर्फ नफ्स पर कनाअत की गई, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसाते इल्म के लिए सिर्फ नफ्स को काफी नहीं मत जाना, नफे कतई का मुतालबा किया है उन्होंने। दूसरी बात यह है कि उसके बरखिलाफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पाक की नफी के वास्ते सबूत में एक बेअसल रिवायत पेश किया है, और उसे शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमतुर रिजवान के तरफ, जो तमाम देवबंदी भी अकाबिर मानते हैं, अहले सुन्नत व जमात भी उनको अकाबिर मानते हैं, उसके तरफ एक बेसरोपा रिवायत को मंसूब करते हुए दलील पे उसको हुज्जत के तौर पर पेश किया है। बराहीन कातिया में ही लिखा है, वो शेख अब्दुल हक रिवायत करते हैं, मुझे दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं। इसको दलील बनाया है उन्होंने, समझे। तो ये हजरत शेख अलैहि रहमतुर रिजवान पर बहुत बड़ा इफ्तरा है। ये रिवायत तो बहुत दूर की बात, उन्होंने मदारिजुन नबुव्वह किताब लिखी, नबुवत किताब लिखी, मदारिजुन नबुव्वह जिल्द नंबर अव्वल सफा नंबर 7 पर इस रिवायत को बिल्कुल यह रद्द फरमाया है। लिखते हैं, फारसी में है, ईजा अशकाले मी आरंद के दर बाज रिवायत आमदा अस्त के गुफ्त आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बंदा अम नमी दानम आचे दर पस ई दीवार अस्त जवाबश आ अस्त के ई सुखन असले नदारद व रिवायत बेदा सही नशुदा अस्त। ये लिखे हैं, इसका तर्जमा सुनिए। इस जगह अशकाल लाते हैं कि बाज रिवायतों में आया है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं बंदा हूँ, नहीं जानता इस दीवार के पीछे क्या है। इसका जवाब ये है कि ये रिवायत की कोई असल नहीं, ये रिवायत सही नहीं है। क्या कह रहे हैं शेख साहब? ये रिवायत फरमा रहे हैं, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमा रहे हैं, ये रिवायत सही नहीं है, रद्द किए हैं, और इसी रद्द को मंसूब कर दिया शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के तरफ। क्या किसी मुसलमान से ऐसी जसारत मुमकिन है, हिम्मत कर सकता है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म को घटाने के वास्ते खुद हुजूर पर झूठ बांधा है इन्होंने। और हदीस में आता है, मन कज़बा अलिया मुतअम्मिदन फलयतब्बउ मिक़अदहु मिनन नार, जो मुझ पर झूठ बांधे वह अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले, इसका भी खौफ ना करे। फिर जुरात बलाए जुरात ये कि जिस बुजुर्ग ने उसे रद्द फरमाया है, उसी रिवायत को इनके तरफ मंसूब करके फिट करके दलील के तौर पर पेश किया। बताइए, इन लोगों की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की पासदारी किया इन्होंने नहीं किया, बल्कि उनके इल्म की कमी निकालने के वास्ते ऐसे बेअसल बेसर पांव का दलील फिट कर दिया अपनी किताबों में। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी नहीं तो और क्या है। जी इसीलिए मैं कहता हूँ ये देवबंदियों को अल्लाह तबारक व तआला इस पे इन लोगों को हिदायत दे, समझे। जी जी। अच्छा, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अलैहि रहमतुल्लाह रिजवान ने जी जिस हदीस का वो रद्द किया है, ये जी लोग जो बताते हैं तो ये उसी को दलील बनाते हैं। जी, उसी को दलील बनाए हैं वो। आपने उसे रद्द किया है उसका? जी जी, आपने जी उनको मदारिजुन नबुव्वह में किताब है जिल्द नंबर अव्वल में उन्होंने फारसी में लिखी तहरीर की है, और उस रिवायत को दीवार के पीछे का इल्म जो इल्म नहीं है कह करके आया है रिवायत में, ये बेअसल है, इसकी कोई सनद मोतबर नहीं है। उस ये तस्लीम करने की बात नहीं हुई, ये तस्लीम नहीं कर सकते, इसको रद्द फरमा रहे हैं उन्होंने। और जी जी उसी को दलील बनाकर इन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म की तनकीस के वास्ते अपनी किताब में दलील के तौर पर फिट कर दिया और पेश कर दिया। पेश कर दिया। जी जी, उसी को कितनी दलील बना दिया। जी, उसी को दलील पकड़ा है। जी देखिए, और एक इसमें तो है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म उसत इल्म नहीं है, बराहीन कातिया में साबित किया है, लेकिन इनके दिगर उलमा जैसे सैफ यमानी, मौलवी मंजूर नुमानी और अल मुहन्नद में खुद खलील अहमद अम्बेटवी लिखता है। मंजूर नुमानी, पहले सुनिए इसको। हमारा और हमारे तमाम अकाबिर का अकीदा ये है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जिस कदर उलूम कमालिया अता फरमाए, इतने मलाइका मुकर्रबीन अंबिया और मुरसलीन की पाक जमात में भी किसी को नहीं दिए। सैफी यमानी जी सफा नंबर 8 में, यानी इल्म के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को ज्यादा बताया इन्होंने, तमाम फरिश्ते तमाम मखलूकात से ज्यादा इल्म तस्लीम किया, लिखा किताब में। और इन्हीं के मौलाना ने लिखा है, इन्हीं के मौलाना मंजूर नुमानी लिखा है। और अच्छा मंजूर नुमानी। जी जी, और खलील अहमद अम्बेटवी खुद लिखता है, मैं और मेरे असातिज़ा ऐसे शख्स को काफिर और मुर्तद और मलऊन जानते हैं जो शैतान अलैहि लानत पर किसी मखलूक को भी जनाबे सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म में ज्यादा कहे। क्या कह रहे हैं वो खुद? शैतान और तमाम मखलूक में जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसाते इल्म को ज्यादा कहे वो काफिर है, मुल्हिद है, मुर्तद है, करके खुद फतवा दिया है। और एक किताब है अल मुहन्नद में यही खलील अहमद बिठवी और तमाम देवबंदी के कुंबा इसको तस्दीक किए हैं, लिखते हैं, हमारा पुख्ता अकीदा है कि जो शख्स इसका कायल हो कि फलां का इल्म नबी अलैहिस्सलाम से ज्यादा है वो काफिर है, किसी से कहे तो वो काफिर है। तो मैं खुद ही लिख रहे हैं, खुद ही लिखा है, बाद में लिखा है। पहले तो बराहीन कातिया लिखा जिसमें इल्म की कमी निकाली है ना, इल्म के उसाते इल्म को इनकार किया। फिर दूसरे फतवे में कहा कि वैसे शख्स को हम लोग काफिर जानते हैं, खुद ही फतवा दिया है। तो उलमाए देवबंद का पलटा खाने के बाद इन 4 इबारतों को देखिए और देवबंदी हजरात से सवाल कीजिए कि तमाम के नजदीक, तुम्हारे नजदीक यानी देवबंदियों के नजदीक बराहीन कातिया की इबारत दुरुस्त है या अल मुहन्नद की दुरुस्त है या सैफी यमानी की दुरुस्त है? क्यों, कौन सी किताब की इबारत को दुरुस्त करोगे? अगर बराहीन कातिया की इबारत को दुरुस्त कहते हो तो ये 4-5 किताबें है ना कि इबारत को दुरुस्त नहीं मान सकते, और अगर इन दोनों को सही कहोगे तो भी तमाम मुर्तद और काफिर और मुशरिक बनते हो। हर सूरत में तमाम देवबंदियों ने खुद ही अपने हक में कुफ्र की रजिस्ट्री कर दी है ना। अब किसी तरह ये कुफ्र उठाया नहीं जा सकता।
इसीलिए मुझे एक शेर आता है इन देवबंदियों के, यानी अपने ही फतवे से अपने ही काफिर बनता है वो लोग। हम लोगों को उन्हीं की किताबों से उन्हीं को मार पड़ती है। तो इसीलिए मुझे शेर याद आता है, अजब कुछ फेर में है सीने वाला जेबो दामा का, जो ये टाका तो वो उधड़ा, जो वो टाका तो वो उधड़ा, ये उधड़ा। शायर बहुत ही सोच समझ करके क्या है, यानी एक किताब को बचाने के चक्कर में दूसरा गर्क होता है और दूसरे को बचाने चले तो तीसरा गर्क होता है, यानी किसी तरफ से बचता ही नहीं। देवबंदियत धर्म ऐसा है, यानी दोगला मीनो अन दोगलापनी को कह दे तो कोई मजाका नहीं। इनको इनके ही फतवे से, अपने ही फतवे से इन लोग खुद काफिर हैं जी। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को इन देवबंदियत के मकार देवबंदियत से बचाए और इनके धर्म से अल्लाह तबारक व ताला इनके शर से तमाम मुसलमानों को अमन व अमान अता फरमाए। इंशाअल्लाह अजीज, अब कल थोड़ा टाइम देंगे आपको इंशाअल्लाह, थोड़ा वक्फा करके एक एक किताब पे रोशनी डालूंगा इंशाअल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।